स्टेडियम में बड़ौदा के आप सभी का अभिनंदन है। बड़ौदा और मुंबई की टीमें आपने सामने है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रणजी ट्रॉफी सीजन 2024-25 की शुरुआत हो रही है। बड़ौदा के कप्तान कुणाल पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। दोनों ही टीमें स्क्रीन पर है। विष्णु सोलंकी, जोसना सिंह, शिवालिक शर्मा, यह है बड़ौदा की टीम। Mumbai, there you can see Siddesh Lat, Prithvi Shaw, Ajinkya Rahane, all of them did well. Jyotsnal Singh on your screen, he had a good season last time around. Shivalik Sharma, it'll be Shardul Thakur, you saw on your screen just now. इस बार बल्ले का चेहरा दिखा दिया गेंद को और शुरुआत की है 4 रन के साथ। ये लीजिए जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, गेंद को स्विंग कराने की क्षमता उनके पास है। गेंद को इस बार अंदर लेकर, हालांकि फॉरवर्ड डिफेंस पे आए थे। 5 for 1 Baroda. Shivalik Sharma, bold Shardul Thakur, Shashwat Rawat. फिर से और पिच गेंद थी, इस बार सीधे बल्ले का प्रयोग किया और बेहतरीन शॉट। फिर से लेग स्टंप के ऊपर इस बार कलाई घूमी, लेकिन फील्डर मौजूद थे और उन्होंने वापसी करा दी। एक आसान सा कैच जोसना ने बनाए 10। Vishnu Solanki. आते वेलकम कर दिया। ओवर पिच गेंद थी, ज्यादा कुछ किया नहीं। अपील हो रही है, क्या उठेगी उंगली? जी हाँ, आखिरकार सोलंकी को आउट करने में कामयाब हुए। Krunal Pandya, the captain. Yes, you were talking, Manoj. He will go for it. He's done that on this occasion. Down the wicket it goes again. Lofts it hard and high. Has he got the distance this time? He has. Near, taken, and he's gone. Shashwat Rawat caught Shaw. Bowled Kotian for 25. Mitesh Patel, the new batter. Just a trifle short. Punts through the covers, through extra cover for 4. That turn fast to the Apko, and that's given. 21 of 38 balls and Baroda reeling at 90 for 5. शाम्स मुलानी सामने छोड़ दबाव बना के रखा है। काफी अटैकिंग फील्ड लगाई है कप्तान ने। उससे गेंद टर्न हुआ, टर्न के साथ ही स्ट्रोक को खेला। गेंद और बाहर की तरफ निकल रही थी, पीछे अटके मितेश ने शॉट को खेला। That's very well, and that is a really fine knock from the wicketkeeper bat. 50 रन शानदार 120 गेंदों में यह शतक पूरा किया है। लीजिए, किनारा लगा और साथ साथ खुद भी किनारे लग गए। मितेश पटेल 86 रन बनाकर आउट हुए। Raj Lambani on your screen you saw. Oh, this is another streaky one. This is the one after that gets his man. This time Shams Mulani. Baroda lose their 7th wicket at 261. Mahesh Pitya. Oh, that should be close. Yes, given. Very good to see Ajinkya Rahane. He's such a calm and balanced person. Comes around, puts his hand around Mahesh Pitya as he Bhargav, but oh, this time on the pads, an opportunity, puts it away in style. Slightly faster than is gone. Caught by the wicketkeeper. The vigil of Raj Limbani for 30, 76 balls he faced. आकाश सिंह आते ही इन्होंने अपने हाथ खोल दिए। आते ही इन्होंने अपना जलवा दिखा दिया और बाउंड्री दी है। That's out, taken beautifully, Ajinkya Rahane. And Akash Singh then. Baroda all out, 290. That's the Baroda batting card. Jyotsnal Singh 10, Shivalik Sharma early out for no score. Shashwat Rawat 25, Solanki 18. पृथ्वी शॉ मात्र 3 पारी, ज्यादा अनुभव नहीं है। 33 रन है। Oh, I call it the commentator's curse. Prithvi Shaw then takes the long walk back to the pavilion. Aditya Mori. ये शॉर्ट गेंद था, यहां पर मौका दिया है अपने बल्लेबाज को हाथ खोलने का। That's lofted over Bidoff's head. Little bit of an outsider as they go through for 1. Matre will want the second, he'll get that. Ayush Matre registers his first half century in first class cricket. That's in the air. There's a man getting under it. The bowler probably will take it on his follow through. He takes it. And suddenly Mumbai is losing a second wicket. अजिंक्य रहाणे
ये जब आप छोटा गेंद करेंगे इनको तो गेंद को कहां भेजना है ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं. And once again, Tamore, this time on the offside. Oh, this could be close, and up goes the finger. 40 of 60 balls. नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आए हैं. Did not keep it down, and look at, oh, has he held on to that? Wow, that's a lucky break, I would say. Ajinkya gone for 29. Mumbai in trouble at 140 for 4. नए बल्लेबाज देसलाड आए हैं. Oh, that's turn and bounce, and after a while, the dreaded finger goes up. 141 for 5, Mumbai. 61 पारियां हैं शम्स मुलानी के नाम. This time sweeps it round the corner, and that should be 4 runs. He's bowled him. Clean bowled. Shams Mulani for 16. Shardul Thakur, look at his first class record. Oh, he's bowled him. Oh, where did that come in from? Siddesh Lad, Mumbai 181 for 7. तनुष कोटिया नए बल्लेबाज आए हैं. Tanush Kotian out for 1. मोहित अवस्थी आए हैं नए बल्लेबाज. Swept around the reverse sweep. He's got it perfect this time. Shardul takes the aerial route as he cut the distance over there. We'll wait and watch. Oh, that's taken. Beautifully taken. Mohit Avasthi now. Cotton ball. Bhargav Butt for 14. Himanshu Singh, 21 years. In the air, and that's taken. Taken right on the mid-wicket boundary. Well judged. A beautiful catch there by Pithiya. Shardul Thakur caught Pithiya, bowled Akash Singh for 27, and Mumbai all out 214, which means Baroda take a lead of 76 runs. Jyotsnal Singh opening the batting. In fact, Raj Limbani. ये लीजिए, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, एकाग्रता का फर्क पड़ता है, फर्क दिखा दिया शार्दुल ठाकुर ने. Jyotsnal goes, in fact, was caught by the wicket-keeper Hardik Tamore. शाश्वत रावत. Oh, that should be close, and there goes the finger. That's the end of Shashwat Rawat. वितेश आए हैं. ये उंगली उठेगी. लिम्बानी ने 3 रन बनाए. Shivalik Sharma, who normally opens the batting. पता ही नहीं लगा कि कब गेंद आना आया और जाकर लग गया. वितेश पहली पारी के संकट मोचन 1 रन बनाकर आउट हुए. विष्णु सोलंकी 71 मैच हैं. सीधे बल्ले से गेंद को केवल चेहरा दिखाया और एक और बाउंड्री. Went after it, the ball is in the air, the fielder getting under it, and he takes it. Vishnu Solanki has got all the experience behind him. Caught Matre, bowled Avasthi. Krunal Pandya. Bat and pad, that's gone. Vishnu Solanki this time takes the long walk back to the pavilion. This is Atit Seth. बेहतरीन ड्राइव, बेहतरीन ड्राइव. 4 रन हो गई. As Krunal Pandya goes down the wicket, he's hoisted it hard and high. Oh, this is the paddle, and another boundary there. This is going across, and there goes the finger. Atit Seth, patient knock, 26 of 57 balls. महेश पीथिया 52 बेस्ट है उनका. He's found the gap through the covers for 4. Through the covers, glorious extra cover drive for 4. Krunal Pandya brings up his half-century in style. And the acknowledges the ovation of this crowd. They go up in a he's got his man. Krunal Pandya, LBW boat, Himanshu Singh. Bhargav Butt. बड़ा शॉट खेला है ठीक बॉलर के ऊपर से. And once again taking the aerial route, this time over mid-wicket. And this one, of course, his head was in the air, but well, trying to up the ante, and Mahesh Pithiya gone for 40. आकाश जिन्होंने 14 पारियों में 83 रन है.
Himanshu now, and it is Bhargav Bhatt now. He's chancing his arm. Look at this. He's gone. That's it. That's it. Finally, Akash Singh rushing back because he may have to open the bowling. Baroda 185, which means Mumbai now need 162 runs to win. पृथ्वी शॉ 100वीं पारी है उनकी. आयुष मात्रे ने शतक बनाया. That's ripped away. That's once again the pickup shot. Same region, down to orthodox wicket boundary for 4. क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? और उम्मीद पर खरे उतर गए. पृथ्वी शॉ ने बनाए 12 रन. हार्दिक तमोरे 27 पारी 732 रन. Second innings, of course. The Mumbai. Oh, they're appealing for. Yes, he's gone. The red light comes on. The crowd roars. Hardik Tamore run out for 6. Ajinkya Rahane, like in the first innings. But once again, a very confident appeal given. Mumbai skipper, on whom a lot depended, unfortunately departs for 12. Brings in another excellent batter of modern times, Shreyas Iyer. Oh, what stroke does he play? Goes for the reverse sweep and plays it successfully. Handicapped that ball. Kaplois bowled him. Ayush Matre bowled but 22. Siddesh Lad, another man with lot of experience. ये फिर से शॉर्ट गेंद. इस बार पुल किया और 4 रन मिल जाएंगे. Reverse sweep again. He's got that spot on. Down to the conventional square third man boundary for 4. In the air, and that's taken. They go up in the PL. Shreyas Iyer called Ratwa the substitute bowler, but for 30, Shams Mulani walks in. और लीजिए, जब फील्डर वहां पर है ही नहीं तो उसका फायदा उठा रहे हैं. शम्स मुलानी ने बाउंड्री ले ली. फिर से लीजिए, फायदा उठा लिया और ये भी दूसरी बाउंड्री भी हो गई. And trying to sweep from the rough, and all going up in appeal. Yes, Shams Mulani out for 12. Got Shivalik Sharma bowled but for 12. and look at Shardul Thakur's runs there. 2014. Oh, this time better with the spin into the gap. Oh, and the ball wins the race. And the man very strategy. Oh, that's gone. 7th wicket goes down, and Mumbai now in deep trouble. Tanush Kotian. Oh, look at that. That's a soft dismissal. Tanush Kotian out for 1. ये बल्लेबाज आए हैं मोहित अवस्थी. 30 पारियों में 3 अर्धशतक हैं हालांकि उनके नाम. And oh, the reverse sweep comes, and with good effect as well. 4 runs, a welcome boundary for Mumbai. फिर से बड़ा शॉट खेला है. फील्डर पीछे हैं. यदि ये बाउंड्री हो जाएगी तो 150 का आंकड़ा भी पार हो गया. क्या ये लगेगा? जी हाँ, आउट. Mumbai are now reduced to 163 for 9. हिमांशु सिंह युवा है, 21 वर्षीय हैं. Now of course realizes there's not much of support, goes over the top. 50 as well to Siddesh Lad. Well earned 50. Yeah, and that's taken. That's the end of it. Baroda have won this round 1 IDFC Ranji Trophy match. अभी तक की मैच की कहानी. 290 बनाए बरोड़ा ने. मितेश ने 86 बनाए थे. सेठ ने 66. मुंबई ने जवाब दिया 214 रन बनाकर. मात्र ने 52 और तमोरे ने 40. बरोड़ा ने 185 रन बनाए दूसरी पारी में. 55 बनाए पांड्या ने, 40 बनाए पीथिया ने. मुंबई दूसरी पारी में टोटल चेज नहीं कर पाए. सिद्धेश लाड ने संघर्ष किया, 59 बनाए. श्रेयस अय्यर ने 30 बनाए. भट्ट सबसे सफल गेंदबाज रहे. 6 विकेट लिए दूसरी पारी में, 4 विकेट लिए थे पहली पारी में. कुल मिलाकर 10 विकेट इस मैच में लिए और बरोड़ा 84 रन से जीता. हमारे भय हमारी छाया एक झेन कहानी है. एक आदमी के पत्नी की मृत्यु हो गई. वह जिंदा थी तब भी पति को सभी तरह से बांधे हुए थी. मरने के पहले भी उससे कहा गई कि ध्यान रखना
कभी किसी दूसरी स्त्री का विचार मत करना, अन्यथा भूत बनकर तुम्हें सताऊंगी। कुछ दिन तो आदमी ने संभाला अपने आप को, लेकिन फिर मन की वासनाएं उसे उकसाने लगी। जीते जी तो उससे डरता रहा, अब मरने के बाद भी डरता है। तो उसने एक स्त्री से प्रेम का खेल शुरू किया। रात में घर लौटा तो पत्नी मौजूद थी, वह बिस्तर पर बैठी थी। आदमी के हाथ पैर कांप गए, घबराकर वह वहीं पर गिर पड़ा। पत्नी ने कहा, कहाँ से आ रहे हो? मुझे सब पता है, अमुक नाम है उस स्त्री का, उसका घर इस तरह का है, तुमने उससे यह कहा है, अभी भी सावधान हो जाओ, अभी पहला कदम ही तुमने उठाया है। इससे तो यह पक्का हो गया कि पत्नी प्रेत बन गई है। एक एक शब्द जो उसने उस स्त्री से कहा, जो प्रेम की बातें की थी, वे सब उसने सही सही दोहराई थी। मकान का जो नक्शा उसने बताया, उससे भी वह स्पष्ट हो गया कि पत्नी वहाँ मौजूद थी। वह बहुत परेशान हो गया। पत्नी रोज़ सताने लगी। आखिरकार वह एक झेन फकीर नानिक के पास पहुंचा और कहा, बड़ी मुसीबत में हूँ, घर नहीं लौट सकता। पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिलती है, उसे सब पता होता है। जाते ही जाते कहेगी, नानिक के पास गए थे, मुझसे छुटकारा चाहते हो? मैं जो कुछ आपसे कहूँगा वह भी सुन रही है वो, आप जो कहेंगे वह भी सुन रही है। नानिक सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, तू जिस पत्नी से परेशान है वह तो है ही नहीं, वह तो मर चुकी है। यह सब तुम्हारे मन का खेल है। नानिक ने एक मुट्ठी बीज उस आदमी को दिए और कहा, मुट्ठी बांध लो इस बीजों पर, घर जाओ और रात में जब पत्नी आए तो उससे पूछना कि कितने बीज है, इसकी संख्या बताओ, और अगर संख्या ठीक न बता पाए तो समझ लेना कि सब झूठ है। आदमी बीज लेकर भागा। तरकीब काम आई। पत्नी से पूछा, बताओ कितने बीज है? पत्नी गायब हो गई। हैरान आदमी लौटकर नानिक से पूछा कि तरकीब क्या थी इसमें। नानिक ने कहा, तुम्हारा मन जो जानता है वही तेरा प्रेत बता सकता है, जो तुम्हारा मन नहीं जानता वो प्रेत नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारे प्रेत तुम्हारे मन की ही रचना है। अगर तुमने बीज गिन लिए होते तो वह प्रेत भी बता देता, क्योंकि वह तेरा ही प्रोजेक्शन है, वह तेरे भय की छाया है। जितना डरो भय उतना मजबूत होता है। तो यह कहानी आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अब हम लोग चलेंगे अगली कहानी की ओर। दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसे ही आध्यात्मिक, मज़ेदार और जीवन से जुड़ी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ, ताकि आप इन सब को सुनकर, पढ़कर आप अपने जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है आपके साथ, उसका उत्तर पा सकें। अगली कहानी है जिम्मेदारी असीम। अपनी जिम्मेदारियों की सीमा को अपने गांव, देश या किसी सामाजिक सरहद में बांधकर जीने वाले लोग चींटी की तरह जीवन जीने वाले हैं। चींटियाँ केवल अपने समाज की जिम्मेदारी लेती है। विकास सोपान के सबसे ऊंचे पायदान पर विराजमान मानव की भांति जीने का मतलब है, पूर्ण मानव के रूप में जीने का मतलब है असीम उत्तरदायित्व की भावना के साथ जीना। जब आप अपनी जिम्मेदारियों की सीमा बांध लेते हैं, तब आप अपनी जीवनता को खो देते हैं। जब आप मानव के रूप में अपने परवाह की सीमा बांध लेते हैं, तो वह उन्नति नहीं, अवनति है। जब आप असीम उत्तरदायित्व की भावना में स्थिर रहते हैं, तब आपके अंदर की मानवता बुलंदी पर आ जाती है। जब आपके अंदर मानवता उमड़ पड़ती है, तब आपके अंदर देवत्व घटित होता है। इसके बाद तो आपके ऊपर आकाश की ओर देखकर ईश्वर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों पर सीमा बांधकर आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है। बहुत सारे लोगों ने भी इकट्ठा कर रखा है, वो है तनाव, मधुमेह, अल्सर, रक्तचाप और मानसिक थकान। आपकी जिम्मेदारियां असीम हैं, इसे मानसिक स्तर पर समझे बिना जब अनुभव के स्तर पर महसूस करेंगे, तब अपने जीवन में इच्छापूर्वक हिस्सा लेने लगेंगे। उस समय हर पल स्वर्ग बन जाता है। यह कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं, बुनियादी सच्चाई है। जीवन में इच्छापूर्वक उत्तर देते समय आपका शरीर, आपकी बुद्धि, संवेदना और प्राण शक्ति, ये चारों एक खास मिठास का एहसास अस्थायी रूप से करने लगते हैं। ऐसा होने पर आप सामान्य रूप से बैठे रहने में भी स्वर्ग समान अनुभव करेंगे। जब आप जीवन में अनिच्छापूर्वक कार्य करते हैं तो शरीर, बुद्धि
संवेदना और प्राण शक्ति सभी नरक बन जाते हैं। ऐसे में मन में थकन होती है और जीवन घुट जाता है। जिम्मेदारियों पर सीमा लगाकर मानसिकता को संकुचित कर लेने से भीतर लेने वाली सांस भी बीमारी बन जाती है और व्यक्ति का जीवन कूड़ा जैसा बन जाता है। उसके बाद बड़बड़ाने से क्या फ़ायदा कि बदबू आ रही है। मगर जिम्मेदारी के साथ इच्छापूर्वक एक बार सांस लेकर छोड़े तो उसमें असीम आनंद का अनुभव होता है। यह अपने अंदर ध्यान की स्थिति बनाने के लिए आपके द्वारा उठाया गया पहला कदम भी है। ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि जिम्मेदारी की सीमा होती है या नहीं। यही अटल सत्य है कि आप विश्व की हर घटना का अनुभव पूर्वक उत्तर देते हैं। प्रश्न यह ही है, क्या आपने महसूस किया कि जिम्मेदारी असीम होती है? अगर आपने इसे अपने मन में गहराई से दर्ज कर लिया तो आपका जीवन आपकी संपूर्ण इच्छा और जागरूकता के साथ घटित होने लगती है। अगला हमारा कहानी है, आत्मा दुखी नहीं होती। हमारी आत्मा यथार्थ दृष्टता है, वह शुद्ध, नित्य, पवित्र और अमर है। उसकी दर्शन शक्ति अर्थात उसके व्यवहार में आने वाले यंत्र कौन कौन से हैं? चित्त, बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिक का वृत्ति, मन और इंद्रिया, ये सब बाह्य जगत को देखने के लिए उसके यंत्र स्वरूप है और उसकी सब के साथ एक रूपता को ही अस्मिता रूप अविद्या कहते हैं। हम कहा करते हैं मैं मन हूँ, मैं क्रोध हूँ, मैं सुखी हूँ, पर सोचो तो सही, हम कैसे क्रोध हो सकते हैं? कैसे किसी के प्रति घृणा कर सकते हैं? आत्मा के साथ हमें अपने को अभिन्न समझना चाहिए। आत्मा का तो कभी परिणाम नहीं होता। यदि यह अपरिणामी है तो कैसे इस क्षण सुखी और दूसरे क्षण दुखी हो सकती है? वह निराकार, अनंत और सर्वव्यापी है। उसे कौन परिणामी बना सकता है? आत्मा सब प्रकार के नियमों से परे है। उसे कौन विकृत कर सकता है? संसार में कोई भी आत्मा पर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। तब भी लोग अज्ञानवश अपने आप को मनोवृत्ति के साथ एकरूप कर लेते हैं और सोचा करते हैं कि हम सुख या दुख का अनुभव कर रहे हैं। जो मनोवृत्ति सुख के आधार पर रहती है उसे राग कहते हैं। हम किसी विषय में सुख पाते हैं, जिसमें हम सुख पाते हैं वह एक प्रकार के समान उसकी ओर प्रभावित होता है। सुख केंद्र की ओर दौड़ने वाले मन के इस प्रवाह को ही राग या आसक्ति कहते हैं। हम जिस विषय में सुख नहीं पाते उधर हमारा मन कभी भी आकृष्ट नहीं होता है। हम नाना प्रकार के विचित्र चित्रों में सुख पाते हैं। तब भी राग की जो भाषा दी गई है वह सर्वत्र लागू होती है। ये कहना है स्वामी विवेकानंद का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं आपके सामने ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान की बातें और अच्छे विचार लेकर आता हूँ, जो आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो परेशानियाँ हैं, जो आप किसी से नहीं कह सकते, अपने मन के अंदर ही रखते हैं, उन सभी सवालों का आपको जवाब मिलता है इस कहानियों से, इन विचारों से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ स्पिरिचुअल बातों में।